Welcome to another episode of Venice Down Wells. In today's episode, we'll learn how to understand Form 16 and how to file your return with the help of Form 16. So let's start. Let me give you a brief idea of Form 16. Basically, Form 16 is a type of TDS certificate that an employer gives it to employees. Form 16 is divided into two parts, Part A and Part B. I have a Form 16 with me, so let's begin. So this is a Form 16, and as you can see, Part A and this is the Part B. The due date to get your Form 16 was 15th June. So that is 15th June 2022. And if you haven't received your Form 16 yet, I suggest you contact your HR. Now let us understand what it is. So the Part A contains all the data of the TDS deposited against your PAN and the salary credited to your account, or let's say gross salary. So Part A, here comes the name of the employer. In our case, it's one of the group companies of Reliance, its address, and on the right side of the Form 16, it's your details. That is your name, your PAN, and your address. Below is the PAN and the TAN of the employer. The PAN is here and this is the TAN. TAN is nothing but tax deduction account number, which a deductor needs to get from the TSIS or the TDS department. This is the assessment year in which you will be filing your return, and this is the financial year for which you will be filing your return. This table here gives us details of all the TDS deposited against your PAN, and this data here is the amount which will be reflected in your Form 16, that is your gross salary. So in our case, this amount 11,78,890 is the total amount of TDS that your employer, which in our case is Reliance, has deposited against your PAN. And this over here, 49,0492 is the total gross salary received by you from your employer. Now coming to Part B, it contains all the details of your salary, such as your gross salary, your value of perquisites, अगर आप कोई exemptions claim कर रहे हो, कोई deductions claim कर रहे हो, if you have any other income from any other source, अगर आपका कोई interest on housing loan है जो आप set off करना चाहते हो, ये सभी details हमें Form 16 के Part B में मिल जाते हैं. हम देखते हैं डिटेल में. So again, just as Form 16 Part A, यहाँ आपके left side में आ जाएगी details of the employer and right side में आ जाएगी details of the employee. That is आपके details. Now here, जो first अपना point है salary as per provisions contained in section 17 subsection 1. ये आपकी होती है total gross salary, जो हमारे केस में है 49,11,978. Now I'll do one thing here. Form 16 के समझाते साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप रिटर्न ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं. So let's begin with that. I suggest you open a income tax portal website जहाँ आप login कर लीजिए with your login credentials. The user ID for this is your PAN or Aadhaar. हम PAN के साथ proceed करेंगे. I'll just put in my PAN. So this is the income tax portal, and we'll be filing the return for the financial year 21-22, that is assessment year 22-23. So मैंने assessment select कर लिया, select mode of filing को online कर लिया, start new filing, individual, because we are an individual is any person जो जिसका status individual होता है, so individual, continue. Select the ITR form. अब आपको कौन सा ITR form applicable है ये जानने के लिए you can refer to our previous videos. हमारे केस में यहाँ ITR 1 applicable है, so we'll go with ITR 1. ITR 1, proceed with ITR 1. अब यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि why you are filing the return. So taxable income is more than basic exemption limit. ये केस है, so we'll continue with that. The government will give you the pre-filled data, that is जो basic details and जो details of your income जो government को पता है वो already आपको data में डाल के देंगे जो आपको confirm करनी पड़ेगी. So we'll confirm or provided personal information. Now your important part is your nature of employment. अगर आपका employer is a central government or a state government or a retail individual, आप यहाँ पे वो सब डाल सकते हो. हमारे केस में it's one of the limited companies of Reliance. So it's not a state or a central government, and therefore I will choose the others option.
are you opting the new regime under section 115 BAC? So if you know लास्ट 2 साल से हमें टैक्स पेयर्स को एक ऑप्शन मिला है टू फाइल द रिटर्न इधर अंडर द ओल्ड रेजिम और द न्यू रेजिम. बेस्ड ऑन दैट आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है. एंड बिकॉज हम ओल्ड रेजिम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं फिलहाल, तो ये मैं नो कर दूंगा. एंड उस हिसाब से हमारी ओल्ड रेजिम के हिसाब से टैक्सेबिलिटी लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी. कंफर्म. आप अपना नेक्स्ट स्टेप ओपन कर लीजिए, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम, जिसमें आप आपकी सभी डिटेल्स देंगे फ्रॉम सैलरी, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और जो भी अदर डिटेल्स है आप सब सैलरी के डिटेल्स या इनकम की डिटेल्स आप ये सब टैब में डाल सकते हैं. सो यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए जिसमें पूछ रहे कि आर यू क्लेमिंग एग्जेम्पशंस अंडर दिस सेक्शन. सो अगर इफ यू आर एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन अंडर दिस सेक्शन आपको यस करना पड़ेगा. देयर आर वेरियस एग्जेम्पशंस सच एज एलटी है, एचआरए है, कैश इक्विवेलेंट है, रिटायर्ड कम ग्रेच्युटी है, काफी सारे हैं. अगर इफ यू आर एलिजिबल आपको यस करना पड़ेगा एंड इफ नॉट आपको नो करना पड़ेगा. हमारे केस में यहाँ बिकॉज कोई एग्जेम्पशन हम क्लेम नहीं कर रहे हैं हम सबको नो करेंगे. Now coming back to Form 16, ये आपका जो ग्रॉस सैलरी दिख रहा है, सैलरी एज पर प्रोविजंस कंटेन इन सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, दैट इज 49,11,978. सो हम यहाँ सेम जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में है वो फिगर बाहर डाल देंगे, दैट इज 49,11,978. सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स. परक्विजिट्स मतलब कुछ भी ओवर एंड अबव सैलरी अगर आपका एम्प्लॉयर आपको बेनिफिट दे रहा है, सच एज कार और फ्री फूड, फ्री गैस, इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल कोई दे रहा है आपको, या कोई सर्वेंट अलाउंस वगैरह दे रहा है, वो सब परक्विजिट्स में आ जाता है. स्टॉक ऑप्शंस भी एक एज अ पार्ट ऑफ परक्विजिट्स. सो अगर कोई भी आपको परक्विजिट्स मिल रहे हैं वो आ जाएंगे आपके ये कॉलम में और ये आपको डालने पड़ेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे. So that is 41,015. अब यहाँ आता है एग्जाम्पशन. जैसे कि मैंने पहले बताया कि यू नीड टू सिलेक्ट द अलाउंस, द नेचर ऑफ द अलाउंस इन विच यू आर क्लेमिंग योर एग्जाम्पशंस एंड अकॉर्डिंगली वो फिगर आप यहाँ डालेंगे. इन आवर केस वी आर नॉट क्लेमिंग एनी एग्जाम्पशंस. हाउएवर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप एचआरए क्लेम कर रहे हो तो आप कैसे डालोगे. So the section for HRA, claiming HRA is section 10 subsection 13A. So I'll select it. ये रहा 13A and आपका जितना HRA दिख रहा है वो आपको दिखेगा फॉर्म 16 में ये कॉलम में HRA हाउस रेंट अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A. तो ये कॉलम में आपको जो अमाउंट दिख रहा है आपको यहाँ डालना पड़ेगा. Now there is a standard deduction of rupees 50,000 available to us. अब ये standard deduction you get only if you are opting for old regime. New regime में आपको standard deduction of 50,000 नहीं मिलता. And because we are opting for old regime, हमें आपको standard deduction of 50,000 claim करेंगे. ये by default आ जाएगा if you are going for old regime. And हमें जो professional tax का benefit मिलेगा of 2,500 ये हम यहाँ डाल देंगे. Now our income chargeable under the head salary is 49,498,3. ये आपका मैच होना चाहिए आपके फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग. So the income chargeable under this head salary is 49,004,93, which is matching with the portal. नेक्स्ट हम आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सो इफ यू नो हम सैलरी के अगेंस्ट अप टू ₹2 लाख एडजस्ट कर सकते हैं इफ यू आर पेइंग इंटरेस्ट ऑन एनी हाउसिंग लोन. सो अगर आप हाउसिंग लोन पे कर रहे हैं जिसका इंटरेस्ट इज अप टू ₹2 लाख, आप आपके सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं एंड वो लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हैं जिसका आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है. हमारे केस में बिकॉज इट इज एक्सीडिंग ₹2 लाख हम पूरा 2 लाख का बेनिफिट लेंगे. तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के टैब में आपको डिटेल्स डालने पड़ेंगे.
Select the type of house property. If it's self-occupied, अगर आप खुद रह रहे हैं, if it's let out, if you have given it on rent, and if it's deemed to be let out. So self-occupied. Here will enter the amount that is provided in a form 16, that is 2 lakhs, and we'll proceed further. Next part आता है income from any other sources. If you are earning any income from any other sources such as dividend, interest income या कोई भी source हो, आप उसकी details यहाँ डाल सकते हैं. Because हमारे पास कोई फिलहाल कोई income है नहीं, हम ये delete कर देते हैं. Now we have gross total income of 47 lakhs 00493. So 47 lakhs 493 का gross total income आपके form 16 के साथ match होना चाहिए. And as you can see, our GTI of form 16 is matching with the portal. So once you enter all these details, you can proceed further by confirming it. Next, coming to the total deductions. So, in the old regime, Chapter 6A provides many deductions which you can set it off against your gross total income. Such as ATC में आपको 1,50,000 मिलता है, ATD में आपको based on your status, like whether you are individual or resident, senior citizen or whatever, आपको 25,000, 35,000 and up to 50,000 benefit मिलता है under ATD. So ये सब डिटेल्स HR आपको पहले ही मांग लेता है, वो फॉर्म 16 में इनकॉर्पोरेट हो जाता है. And at the end of the year, while filing the return, you can rely on your form 16. So हम form 16 में आते हैं and total deduction to be claimed under chapter 6A of section 80C is 1,50,000, which is the gross limit. हम पूरा claim कर रहे हैं, so वो पूरा benefit ले लेंगे. First, before moving to that, हमें कुछ questions पूछे गए कि अगर आप इस section में deduction claim कर रहे हो, so we'll have to provide the answer yes or no. So this is for any donation paid, which is section 80G. So हम इसका benefit नहीं ले रहे तो हम no कर देंगे. And जो भी आपको benefit आप ले रहे हो उसको आपको yes करना पड़ेगा. Now coming to this section 80C, हम इसमें benefit ले रहे हो of up to rupees 1,50,000. So I'll put in a value of 1,50,000. Next, coming to form 16, maximum benefit is 1,50,000, so that has been restricted to 1,50,000. हम additional benefit claim कर रहे हैं under section 80 CCD subsection 2, which is contribution by employer to a pension fund. So यहाँ हम benefit claim कर रहे हैं of rupees 1,47,000. So वो amount आएगा ये section 80 CCD subsection 2 में. So you put in the amount. अगर आप 80D में कोई benefit claim कर रहे हैं उसका फिगर आपको यहाँ आ जाएगा and you'll have to put in that amount in this section. Because हम claim नहीं कर रहे हैं, I'm not entering that amount. And if इसके अलावा आप कोई भी deductions claim कर रहे हो under chapter A, आपको ये yes या फिर no करके वो आपको details submit करने होंगे. So the total deductions which we are claiming under chapter 6A is rupees 2,97,000. ये आप match कर लीजिए आपके form 16 के साथ. So the aggregate of deductible amount under chapter 6A is 2,97,000. So हम सही track पे जा रहे हैं. Now the total tax part. So आप हमेशा सोचते होगे कि यार मेरा इतना टैक्स डिडक्ट होके क्यों आता है, मेरी सैलरी 1 लाख की है बट मुझे आता है सिर्फ 80,000. So the amount which gets deducted is TDS. आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स पहले ही डिपॉजिट कर देता है टू द गवर्नमेंट एंड जिसका बेनिफिट ये आप सेट ऑफ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अ रिटर्न. सो आपका जो भी TDS डिपॉजिट होता है उसकी डिटेल्स आपको ये टैब में डालनी पड़ती है. सो लेट्स सी व्हाट इट इज. Now coming down the form 16.
जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि फॉर्म 16 पार्ट ए आपको जो भी टैक्स डिपॉजिटेड अगेंस्ट योर पैन, जितना भी टीडीएस डिडक्टेड अगेंस्ट योर पैन डिपॉजिट हुआ है उसकी समरी देता है. सो नाउ वी नीड टू गो बैक टू पार्ट ए ऑफ फॉर्म 16 and in this tab you'll have to enter the details of the TDS deducted. यहाँ पे हमें कंपनी का टैन डालना पड़ेगा जो हमें यहाँ से मिल जाएगा. दिस इज टैन ऑफ रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड. सो ये टैन हम डाल देंगे. आपको नेम देना पड़ेगा जो कंपनी, जिस कंपनी के लिए आप काम करते हैं और जिस कंपनी ने आपका टीडीएस डिपॉजिट किया हुआ है. एंड यहाँ पे आपका इनकम चार्जेबल इंटर सैलरीज आएगा, जो आपको कितना ग्रॉस सैलरी मिला है फ्रॉम द एम्प्लॉयर. सो दैट इज दिस अमाउंट विच इज 49,492. एंड ये टोटल टैक्स डिपॉजिट में आपका आ जाएगा कि आपका कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है एंड विच हैज बीन डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट. सो इट्स 11,78,890. सो ये फिगर मैं यहाँ डाल दूंगा. तो हमने सारी डिटेल्स फॉर्म 16 की इनकॉर्पोरेट कर दी है हमारे रिटर्न में. सो हमने समझ लिया कि व्हाट इज फॉर्म 16 पार्ट ए एंड पार्ट बी. हमें सैलरी फॉर्म 16 से कौन सा अमाउंट इनकम टैक्स पोर्टल पे कहाँ डालना है, एंड हमने कोई डिडक्शन क्लेम किया है, एग्जेम्पशन क्लेम किया, उसको कैसे इनकम टैक्स पोर्टल पे दिखाना है. नाउ हमारा लायबिलिटी, जो टैक्स लायबिलिटी है वो कैलकुलेट हो चुका है एंड द टोटल टैक्स पेबल टू अस इज 11,78,890, जो आप आपके फॉर्म 16 में भी देख सकते हैं. So the total tax payable including the cess of 4% is 11,78,890. अगर हम ये कंफर्म करेंगे तो आपका जितना लायबिलिटी बन रहा था उतना ही टीडीएस आपके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया है फ्रॉम योर अकाउंट एंड हैज बीन डिपॉजिटेड अगेंस्ट योर पैन. तो आप देख सकते हैं 11,78,890. ये एक स्मॉल समरी है जिसमें आपके जीटीआई दिख रहा है, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम. आपने चैप्टर 6 में कितने डिडक्शंस क्लेम किए हैं एंड आपका टोटल इनकम. एंड एज यू कैन सी हियर कि आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी हो रहा था, जैसे मैंने आपको बताया 11,78,889. इसको आप कंफर्म करते ही आप यू कैन प्रोसीड फर्दर. एंड ये और एक समरी है, आपका जितना टैक्स लायबिलिटी बन रहा था उतना ही आपका टीडीएस डिपॉजिट हुआ है. नीदर अ रिफंड और नॉर अ टैक्स लायबिलिटी. अगर आप कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या कोई भी कैपिटल गेन या कोई ऐसी इनकम शो करते हैं जो आपके फॉर्म 16 में नहीं दिखी थी, तो आपको एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आती है. एंड इन केस आप कुछ ऐसा एग्जेम्पशन या ऐसा डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं जिसको आपने फॉर्म 16 में डिस्क्लोज नहीं किया था, तो यह आपका एडिशनल रिफंड आ जाता है. हमारे केस में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए हमें ना तो रिफंड आ रहा है ना ही टैक्स लायबिलिटी आ रही है. यू कैन प्रीव्यू द रिटर्न फ्रॉम हियर. आपको आपकी डिटेल्स टिक एंड कंफर्म करनी पड़ेगी एंड यू कैन प्रोसीड टू फाइल द रिटर्न. तो रिटर्न कैसे फाइल करते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था. आज के वीडियो में वी हैव कवर्ड हाउ टू फाइल योर रिटर्न विद द हेल्प ऑफ फॉर्म 16. एंड आई होप ये आपको बेनिफिट करेगा. एंड इन केस देयर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क देम इन द कमेंट बॉक्स. If you have any queries, you can contact our tax expert. And if you need to know more about this, you can subscribe to our channel.